My dear students, ladies and gentlemen, we are once again together to learn how can we reduce the levels of stress in our life. क्या ख्याल है? Is it not important? The purpose is not to increase the stress. Objective is how can we reduce the stress. और मैंने last time आपसे पिछले सेशन में कुछ चेकआउट बल्कि चेक लिस्ट दी थी, चेकआउट नहीं, चेक लिस्ट दी थी कि हेडेक है, इंसोम्निया है, lack of concentration hai. These are some of the signs. So let us move on and then learn that what kind of stressors there might be and how are you going to cope with it. But this is very important that you should not develop the headache. You should not develop a feeling as if you are running out of energy. अच्छा, आउट ऑफ एनर्जी हो जाएगा तो ड्राइव कैसे करेंगे भाई? गाड़ी रुक जाएगी. ये जिंदगी की गाड़ी, ये पूरी बॉडी और ये बॉक्स रुक जाएगा. और जो बॉक्स है इसको फिर कौन चलाएगा? यू हैव टू ड्राइव इट. तो प्लीज कीप दिस इन माइंड दैट यू आर द ड्राइवर ऑफ योरसेल्फ. ऑफ कोर्स स्ट्रेस विल बी देयर. जॉब कंडीशन कुड इटसेल्फ बी a stress. Working hours could be stress. Well, but that's how it is. Either try to find a different job where you like the working hours or the conditions of the job. But as long as you're here, let's not this become a stressor. तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि वर्क प्लेस पे क्या स्ट्रेसर्स हो सकते हैं. वर्कलोड इटसेल्फ, बैंकों में काम करने वाले, अकाउंटिंग कंपनियों में काम करने वाले, मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वाले, वर्कलोड. अच्छा, रोल कॉन्फ्लिक्ट एंड एम्बिग्यूटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां है, कैसे है, एम्बिग्यूटी. रिमेंबर वी वर टॉकिंग अबाउट पर्सनैलिटी में हमने कहा था टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी. हाउ डू यू डेवलप एंड हाउ कैन यू मिनिमाइज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द रोल? यू हैव टू फाइंड आउट. लेट्स दिस नॉट बिकम ए स्ट्रेसर. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वर्क एंड लाइफ रोल्स. घर में आपका एक स्पाउस का रोल है, एक फादर का रोल है, एक ब्रदर का रोल है, सिस्टर का रोल है, वाइफ का रोल है. ऑफिस में आपका एक प्रोफेशनल का रोल है, मैनेजर का रोल है. लेट दीज टू रोल्स नॉट मिक्स टुगेदर. वर्क प्लेस एग्रेशन होती है, बुलिंग, लोग मजाक उड़ाते हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस होता है. Sometimes you become part of it. मैंने कहा था ना, you are a stressor, your behavior is stressor. And sometime, my dear students, you become victim of that stressor. तो हमें learn ये करना है कि we can protect ourselves not to become victim and not to become reason. Harassment है, sexual harassment है. Women are coming in the office now, in the workplace now. You need to learn what kind of sentences, what kind of words, what kind of body gestures you are using. It should not be translated into sexual harassment, male and female. अच्छा, फिर ये जो झगड़ा है दफ्तर में, violence, this causes stress. यूनियन के झगड़े, ऑफिसर्स के साथ, मैनेजर्स के साथ, career development sometimes becomes stress. You feel as if you are in a tunnel and you don't see any light at the end of the tunnel. You think you are left behind in the career. और आखिरी जो मैंने इस लिस्ट में लिखा है स्ट्रेसर वर्क पर्सपेक्टिव में, interpersonal relations with your colleagues, the people sitting next door, people sitting in the next department, people one above, one below. So how can you make these relations professional? At least these relations should not become a source and a cause of stress. ये है लर्न करने का मकसद. लाइफ में देखिए कौन कौन से स्ट्रेसर्स हैं. एक लिस्ट तो आपके सामने हो ना, और आइंदा जब ये लिस्ट में से कोई चीज आपके सामने आए, बल्कि अभी जब हम असेस करेंगे पिछले एक महीने में फोकस करते हुए, तो आपको ज़हन में रखना है कुछ चीजें वर्क से आ रही हैं, कुछ चीजें लाइफ से आ रही हैं, कुछ चीजें फैमिली से आ रही हैं. इज इट बिकमिंग ए स्ट्रेसर फॉर यू एंड क्रिएटिंग स्ट्रेस? लाइफ स्ट्रेसर में देखिए डेथ ऑफ पेरेंट,
or death of spouse. It's a life transition. Yes, it is. But then, does the life stop? My dear students, life does not stop. This is a natural phenomena. And I know this has been well accepted and realized. Death of parent, one person in father or mother. Death of wife or husband, for those who are married managers who might be taking this course. Yes, it creates stress, lot of stress. Separation and divorce. देखिए modern work environment है. ये industrialization or globalization, then it will bring that value system which is attached with it. Take a look on the separation and the divorce rate of the West. I have an experience of North America. Everybody has to go in the office at 8 o'clock. And going from 8 to 5 and beyond 5, and then the gender issues, and then the masculine issues all create stress. And this race of becoming a professional, house is left behind. Life will create stress. That, of course, affects the family life. Wife is a manager, husband is a manager. वो भी डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर है. दोनों हॉस्पिटल में जा रहे हैं, सारा दिन वहीं पे मसरूफ हैं. और खास तौर पे अगर हाउस जॉब करते हुए शादी हो गई, 12-12 घंटे की शिफ्ट है. इट कॉजेस स्ट्रेस. अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो एमबीबीएस है और मेडिकल डॉक्टर है, हॉस्पिटल में काम कर रहा है या काम कर रही है, उन पर स्ट्रेस नहीं होता है. उन पर भी होता है. लाइफ रिलेटेड स्ट्रेस एंड वर्क रिलेटेड स्ट्रेस विद एवरीबॉडी माय डियर स्टूडेंट्स. अच्छा, फिर फ्लंकिंग आउट, यूनिवर्सिटी में से भाग गए, कोर्स को ड्रॉप कर दिया, उसका प्रेशर नहीं होता है? बिल्कुल होता है. conflict between parents affecting the children, conflict between the son and the father affecting and becoming a stress, conflict within the spouse, wife and husband. It could be any reason. I don't want to go into the reason, but don't you think it's not there? It is there. Do you think we can get rid of this conflict between son and parent or daughter and mother and wife and husband? Conflict खत्म हो? नहीं होगा. मेरा experience है, नहीं होगा. You have to manage, to learn, to live together comfortably. जैसे कहते हैं ना, लाइन ड्रॉ कर लीजिए. अच्छा, ठीक है, यहां तक तो मामला ठीक है, इससे आगे we can talk it out. Please communicate. इसलिए पहली स्किल है कम्युनिकेशन. प्रॉब्लम वहां होता है कि जब हम कम्युनिकेट ही नहीं करते. डेथ ऑफ ए क्लोज फ्रेंड. हमारे माशरे में जहां हम लोग फ्रेंड्स पे भी बहुत डिपेंड कर रहे होते हैं. ईस्टर्न कल्चर, फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वेस्टर्न कल्चर शायद फ्रेंडशिप का वो कॉन्सेप्ट नहीं है. वहां तो डेथ ऑफ ए पेरेंट भी सम टाइम, स्पेशली व्हेन दे आर ग्रोन अप, दे आर लिविंग अवे फ्रॉम पेरेंट्स. वैसे जनरेशन वाई के बारे में फाइंडिंग ये आ रही है, दे आर वेरी स्मार्ट. They know that they have a difficulty in finding a job, so they don't want to leave their room in the parents' house. कहते हैं किराया तो बचाओ. They're smart. हमारे यहाँ तो देखिए, हमारे माशरे में तो ये वैल्यू बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है कि अलग रहना है, ये एक घर में रहना है, और घर में अगर रहना है तो कैसे मैनेज करना है. We need to learn. Joint family system may be a cause itself of stress. But then when you're not living in a joint family system, 2 houses are being run or 3 houses are being run. And this new house, new son and his wife, they have to manage everything. Think about it. I'm not giving any recipe here. I'm just sharing with you that these social issues of living together in a collective family or in a separate family,
दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. वहां स्ट्रेस ये है कि बहू को सास की बात सुननी पड़ती है. यहां जब अलग रहेंगे तो कुछ सुनाने वाला तो नहीं है, लेकिन यहां पर हर चीज खुद से करनी पड़ेगी. आपकी पॉकेट पर भी, पर्स पर भी, आपके वर्क एनवायरनमेंट पर भी, आपके कैश इन फ्लो के ऊपर भी और आउटफ्लो पर भी प्रेशर तो होगा. तो आपको फैसला करना है कैसे लेके चलना है. लॉस ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट जो मिल रही थी आपको, स्कॉलरशिप मिल रहा था. आई नो मेनी students from Pakistan, they've gone for PhD and all of a sudden conditions changed. उसकी कोई भी reason हो सकती है. Now there is a pressure that you don't get a check on the first week of the month. Loss of financial support. So my dear students, these are the stressors. It will vary from person to person, work related, life related. But please take a note of it that we have to keep them under control. Because when we do not take it under control, and please remember, it's a emotional or psychological factor. And speaking of the psychological factor, इस स्ट्रेस का कितना इफेक्ट होता है. स्ट्रेसर कोई भी हो. अब जो मैं एग्जांपल आपसे शेयर करने लगा हूं, वो एग्जांपल है लैक ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस ऑन द फ्रेंड. जिस दोस्त पर आप इतना तकिया करते थे, जिस दोस्त पर आप इतना ट्रस्ट करते थे, and all of a sudden you find out he is not trustworthy anymore. You go into shock. So going into shock again is a psychological factor to begin with. Emotions hurt हो गई ना, दिल टूट गया. अच्छा जब कहते हैं ना दिल टूट गया, दिल टूटता तो नहीं है, फीलिंग ऐसी होती है. यू स्टार्ट फीलिंग लो. अच्छा 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 2 मिनट होता है. इट्स अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस. बट प्लीज गेट आउट ऑफ इट. कीप इट अंडर कंट्रोल. सीजर का नाम आपने सुना होगा. Very brave man, very intelligent person. Remember the story of the Caesar and the Brutus? When he was fighting with the army, he was a brave man. Physical weight में कुछ फर्क नहीं पड़ता. Physical weight आपका वही रहता है. Psychological weight में फर्क पड़ता है. Stress जब आता है, जब हमने कहा ना, you lose energy. As if you lose weight. वेट नहीं लूज कर रहे होते आप. फिजिकली आपको कुछ नहीं हो रहा होता. साइकोलॉजिकली यू गो इनटू वेरी लो मोड. Caesar was depending heavily as a trustworthy friend, and the friend was Brutus. And when it turned out that in the fight with the other group of people, he was hanging in there, fighting bravely. लेकिन जब उसने देखा कि आगे भी दुश्मन है और पीछे से भी कहीं तीर आ रहे हैं, तीरों का जमाना था, और उसने यूं पीछे मुड़कर देखा. और जब उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी वो बड़ी वेल नोन और वर्ड नोन स्टेटमेंट है, Brutus, thou you? Then the Caesar must fall. He just fell down there and he died. See the shock? कि जब मेरे अपने दोस्त ही दुश्मन हो गए, Brutus, thou you? Then the Caesar must fall. So please, इस स्ट्रेसर्स की लिस्ट को कम कीजिए. अपनी जिंदगी में, अपने ऑफिस में, अपने वर्क में इस लिस्ट को मिनिमाइज कीजिए और इन स्ट्रेसर्स इफेक्ट्स को मिनिमाइज कीजिए. अल्टीमेटली अभी हम देखेंगे, फिर इसको फिजियोलॉजिकली आपको इफेक्ट करेंगे, फिर आपको फिजिकली इफेक्ट करते हैं, और बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि वन लूजेस द लाइफ. So to keep it under control, understand the causes of the stress. लिस्ट का पता तो हो ना, ये दर्द जो हो रहा है ये कहां से हो रहा है, उसका अंदाजा तो हो. Maybe you prepare a written assessment of your stress factor. मैंने कहा था ना पिछले 1 महीने में लिस्ट बनाइए. This will help you to understand and visualize them. कौन है वो
कौन सा सिस्टम है, कौन सा खाना है, ये जो प्रिवेंशन है ना, ये जो प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी है, ये ज्यादा बेहतर है। मैंने लर्न किया, स्पेशली इन द सीनियर एज व्हेन देयर इज ए joint pains. It could happen in any age, but generally in senior age. And of course, when you have pain, it creates stress. दफ्तर भी जाना है, क्लास भी लेनी है। अब हर आदमी पूछ रहा होगा, सर क्या हुआ, सर खैरियत तो है ना। ये पूछना जो है और स्ट्रेस क्रिएट करता है। How are you going to cope with it? How are you going to cope with it? Well, make a list. किस फूड आइटम से ये एग्रीवेट होता है? फूड आइटम इज ए स्ट्रेसर। आपका जॉइंट पेन, देखिए मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं साइकेट्रिस्ट भी नहीं हूं, लेकिन मैं एक मैनेजर को एक डॉक्टर भी होना चाहिए। मैंने कहा था ना, डायग्नोज कीजिए। और यू आर ए स्मार्ट पर्सन, आई एम ऑल्सो स्मार्ट। मैंने डायग्नोज किया कौन सा फूड आइटम मैं खाता हूं तो उससे मुझे प्रॉब्लम होता है। मेक अ लिस्ट, यही बात मैं कर रहा हूं ना। एंड देन अवॉइड इट। अवॉइड इट। अवॉइड नहीं करेंगे, वो काज होगा तो स्ट्रेस होगा, तो फिर इफेक्ट होगा। सीधी सीधी सी बात है। एक लिस्ट बना लीजिए। जिंदगी के अंदर बहुत सारे फूड आइटम्स है खाने वाले, 2 4 5 नहीं भी खाएंगे तो क्या हो जाएगा। अगर ज्यादा खाने से प्रॉब्लम होता है तो हाथ खाएं। अच्छा, वैसे भी देखिए, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम असल में बिलीव्स तो हैं हमारे, हम उनको प्रैक्टिस में नहीं लाते। नॉलेज तो है। आपने फरमाया कि विजडम की बात है, पानी पीना है तो शुरू में पीजिए, रहमत है। जितना पीना है शुरू में पी लीजिए। पानी को दरमियान में पीना, इट्स ओके। एंड पे तो बिल्कुल ना पीजिए। लेकिन हम में से कितने हैं जो इस पे फॉलो करते हैं। फिर ये फरमाया आपने, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1/3 खाना खाओ, 1/3 हवा के लिए स्पेस रखो, और कुछ भूख हो तो हाथ खींच लो। हम तो कहते हैं जब तक नक्को नाक ना हो जाए तो कैसे हाथ खींचे। टेक अ लुक ऑन द वेडिंग सेरेमनीज एंड ऑन द फंक्शंस एंड द इवेंट्स। पढ़े लिखे अनपढ़ सब बराबर होते हैं। छोटे शहरों के, बड़े शहरों के, कराची में भी शादियां मैंने अटेंड की हैं, इस्लामाबाद और लाहौर में भी। ऐसे लगता है जैसे खाना इससे पहले कहीं नजर ही नहीं आया। मेक अ लिस्ट। बाद में जाके आपने जो कारमीना लेनी है या हाजमोला खानी है तो बेहतर है कि अभी से आप उसको कंट्रोल करें। एंड इफ यू डू नॉट कंट्रोल, देन बिलीव मी, इफ यू गो टू अ मेडिकल स्टोर, दे विल टेल यू 2 types of drugs are sold at the highest level. One is the painkiller, second is the digestive drugs. Stomach upset, indigestion, ulcers. तो प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी, अभी आगे स्ट्रेटजीज की भी हम बात करेंगे। तो प्रोएक्टिव प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपने सुना होगा, मैं तो नहीं कह रहा हूं। नंबर 3, डेवलप योर एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर और अनयूजुअल कंडीशन। डेवलप योर एबिलिटी, इसी को मैंने कहा था रेजिलियंस। रिमेंबर इन द लास्ट सेशन आई शेयर्ड विद यू हाउ आई डेवलप दिस रेजिलियंस दैट आई कैन सिट ऑन द चेयर एंड मे, मेरा काम कुर्सी पे बैठ के करने वाला है, आपका काम अगर चल फिर के प्रोडक्शन लाइन पे करने वाला है, खड़े होकर करने। डेवलप दिस एबिलिटी। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत फ्लेक्सिबल बनाया। लेट दिस नॉट बिकम ए स्ट्रेस ऑन यू। डेवलप योर एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर। हाउ कैन यू वर्क अंडर प्रेशर? मैं अमूमन लीडरशिप स्किल पढ़ाते हुए वर्कशॉप में ये कहा करता था, when the sea is calm, any fool could drive the ship. It takes a leader when the sea तूफान हो,
when the sea is stormy. It takes a leader to take it through. To develop those conditions, how can you work under pressure? Number 4, recall, are you type A or B? याद है हमने पर्सनैलिटी टाइप ए और बी की असेसमेंट भी की थी. थोड़ा आगे चल के फिर मैं आपसे फिर शेयर करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा पर्सनैलिटी टाइप ए वालों से, सेल्स और मार्केटिंग वालों से, खासतौर पे सेल्स वालों से, इफ इट्स हर्टिंग यू, switch the function. If you cannot switch the business function, you want to be in the sales team, bonus आता है, बहुत सारे profit मिलते हैं, good. Change your personality from A to maybe B+. इसलिए कि stress तो ठीक नहीं है ना. We'll talk about that. और फिर deal with these stressors in such a way that you know it is causing pain. पता तो हो कि पेन किसकी वजह से हुआ, कहां से हुआ. और फिर is it in your control? If it is in your control, well, you have to manage it. Nobody else will come to help you out. So let's take then time out, assess yourself where you are in managing the stress. So we like to measure your stress level. एक तो वो पैम्स का इंस्ट्रूमेंट है, उसको तो आप डिटेल और कंप्रिहेंसिव उसको फिल करके सबमिट करेंगे. बट दिस इज अ क्विक चेक ऑफ योर स्ट्रेस लेवल. एज अ गुड इंडिकेटर दैट हाउ आर यू गोइंग टू कोप विद इट, एंड व्हाट आर द लिस्ट्स व्हिच यू विल लिस्ट डाउन आफ्टर गेटिंग द आंसर. मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा, आपके पास स्केल है 0 से 4 का. 0 का मतलब ये है never, it never happens to you. You give 0. You will give 1 marks, almost never. Never, 0. Almost never, 90% नहीं होता, 85% नहीं होता. Give 1 marks. 2 नंबर आप अपने आप को देंगे उस स्टेटमेंट के लिए sometimes के लिए, हाँ कभी होता है. 3 नंबर देंगे often, और 4 नंबर देंगे very often. ठीक है, स्केल समझ में आ गया. आई रिपीट, जो मैं स्टेटमेंट, मसलन मैं पहली स्टेटमेंट पढ़ता हूं. पहली स्टेटमेंट ये है कि हाउ ऑफन हैव यू बीन अपसेट बिकॉज ऑफ समथिंग विच हैपेंड टू यू अनएक्सपेक्टेडली. हाउ ऑफन, रोजाना, हफ्ते में 2 मरतबा, दिन में 5 मरतबा. हाउ ऑफन हैव यू बीन अपसेट. देखिए अपसेट होना जो है एक इमोशनल साइकोलॉजिकल फीलिंग है. हाउ ऑफन हैव यू बीन अपसेट because of something which happened unexpectedly. आपको 0 में अगर कभी नहीं हुआ तो 0, almost never 1 नंबर, very often होता है, दिन में कई मरतबा होता है तो 4 नंबर. ठीक है, और पिछले 1 महीने पे फोकस कीजिए, इसलिए मैंने लिखा है think of the past 1 month to answer these questions. So number 1, how often have you been upset because of something which happened unexpectedly? Number 2, how often have you felt that you were unable to control the important things in your life? How often have you felt that you were unable to control the important things in your life? Never हुआ है, कभी नहीं हुआ, 0. कभी कभी होता है 1, अमूमन होता है 4. Number 3, how often have you felt nervous and stressed? How often have you felt नर्वस, घर में भी और ऑफिस में भी. आप उसको अलग अलग भी कर सकते हैं, इन जनरल भी ले सकते हैं. ठीक है ना, घर में हो या ऑफिस में हो, नर्वस होना और स्ट्रेसफुल होना तो कोई अच्छी बात नहीं है. ये तो नहीं ना कि अपनों के दरमियान बैठ के आदमी नर्वस ही नजर आए. हाउ ऑफन हैव यू फेल्ट नर्वस एंड स्ट्रेस्ड? नंबर 4, हाउ ऑफन यू हैव फेल्ट कॉन्फिडेंट अबाउट योर एबिलिटी टू हैंडल योर पर्सनल प्रॉब्लम्स? How often you felt confident about your ability to handle personal problems? How often have you felt that things were going your way? How often you felt that things were going your way? How often have you been able to control irritation in your life? How often you have found that you could not cope with the things that you had to do? Number 8, how often have you felt that you were on the top of the things? How often you felt that you were on the top of the things? Number 9, स्केल को याद रखिएगा,
0 आपने नेवर के लिए देना है और वेरी ऑफन के लिए 4 है. नंबर 9, हाउ ऑफन हैव यू बीन एंगर्ड? गुस्सा आता है बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट वर आउटसाइड योर कंट्रोल. गुस्सा आपको ऐसी चीजों पे आ रहा है जो आपके कंट्रोल में नहीं है. वो सड़क पे जा रहे थे मोटरसाइकिल लेके, रेड लाइट हो गई. अब आप कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, आपके कंट्रोल में तो नहीं है. नंबर 10, हाउ ऑफन हैव यू फेल्ट डिफिकल्टीज एंड दीज डिफिकल्टीज वर पाइलिंग अप सो हाई दैट यू कुड नॉट ओवरकम देम. ठीक है जनाब. नंबर 10 है कि हाउ ऑफन हैव यू फेल्ट डिफिकल्टीज वर पाइलिंग अप सो हाई दैट यू कुड नॉट ओवरकम देम. स्कोर निकाल लीजिए, टोटल कर लीजिए. जितना हाई स्कोर होगा उतना अच्छा नहीं होगा. इन जनरल मैं आपको ये बता दूं. निकाल लिया स्कोर आपने? जल्दी कीजिए. ये 10 स्टेटमेंट्स जो हैं आपको पावर पॉइंट में भी मिल जाएंगी और इसका वर्ड डॉक्यूमेंट भी हम अटैच कर देंगे और मैंने ये रीड भी कर दी हैं. आपने इसका स्कोर निकाल लिया होगा. देखिए असेसमेंट का टाइम है. अब आइए मैं आपसे एक जनरल, एक एवरेज स्कोर शेयर करता हूं. वैसे तो एवरेज स्कोर मेन के लिए 14 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और वुमेन के लिए 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ये तो हो गया जेंडर बेस्ड. लेकिन ये एज बेस्ड भी है. दिस इज व्हाट आई हैव टेकन फ्रॉम द रिसर्च. देयर कुड बी वेरिएशन. एज एवरेज स्कोर 20 to 29 मैक्सिमम है, 14 है. और देखिए जैसे जैसे एज प्रोग्रेस कर रही है इसका लेवल कम होना चाहिए, इसलिए कि बॉडी का जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो कंपैरेटिवली वीक होता चला जाता है. व्हेन यू आर यंग एडल्ट 20 to 29 you can kick the wall, you can push everything around, you feel highly energetic. और उस वक्त लो एनर्जी हो तो that's not good. स्कोर आपके सामने है. 20 to 29 14, 30 to 44 13, 45 से 54 12.5, above 55 on the basis of age score should be around 12. असेस कर लीजिए, देखिए क्या चीज स्ट्रेसर है, कहां आप खड़े हैं. How can you bring it down? Please bring it down. All right, my dear students, we have measured in the last 1 month where we were. We like to make a roadmap now so we can learn the strategies and we can learn those skill sets which can help us to manage the stress and time. And keep on learning this skill. What is so important with this stress? To manage the stress, if possible, leave your workplace briefly. If possible, थोड़ा सा कमरे से बाहर आ जाएं. Take a brisk open air walk. जगह चेंज कर लीजिए. ये बिल्कुल वही बात है कि once again आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा आ गया है, खड़े हैं तो बैठ जाइए. चेंज कर लीजिए अपनी पोजीशन को. बैठे हैं तो लेट जाइए. चेंज कर लीजिए. ऑफिस में हैं, वहां नेचुरली बैठे हैं आप, come out of the scene of the place. Take a little walk. Find a quiet place to read a magazine or novel जो आपको पसंद हो. तवज्जो तो हटाइए थोड़ी सी. ये आपको ही करना होगा. आप अगर वहीं पे फोकस किए हुए हैं जो सोर्स ऑफ स्ट्रेस है, माफ कीजिए स्ट्रेस तो कंटिन्यूअसली आ रहा है. The stressor is causing the stress and you are not developing a force. अभी वो कुर्ट लेविन का जो मॉडल है वो भी मैं आपसे, फोर्स फील्ड मॉडल, वो भी शेयर करता हूं. फाइंड टाइम आउटसाइड योर वर्क टू डू समथिंग विच यू एंजॉय. कोई वॉलंटियर वर्क, किसी यतीम के लिए कोई काम, किसी सीनियर आदमी के लिए कोई काम कर देना. समथिंग विच यू एंजॉय एंड यू फील प्राउड ऑफ इट. दफ्तर में तो मेरे काम को कोई अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन ये काम जो मैंने किया तो उसने शुक्रिया अदा किया. अच्छा, ये जो लफ्ज थैंक यू है, it gives you energy. Someone who appreciate you. लेकिन होगा तभी कि you can do something which you enjoy. और ये जो enjoyment है, अभी मैं आपसे शेयर करूंगा, आपने भी सुना होगा, laughter is the best medicine. Happiness removes stress. Toxic chemicals in your body, toxins, they are because of these stresses. You got to minimize it.
Let's learn what are the strategies we can use. Keep something humorous on hand. तो टीवी पे प्रोग्राम ऐसा देख लीजिए अगर मौका मिल रहा है. Keep something humorous on hand. अब अभी मैंने कहा था ना, laughter is a good medicine. वो जो प्रोग्राम आप देखते हैं जरूरी है. जिंदगी के अंदर हर वक्त सारा दिन ऐसे ही चेहरे को चढ़ा के बैठे रहना, नॉट गुड. यू हैव टू फाइंड अ वे आउट. अच्छा, फिर लर्न एनी मेडिटेशन टेक्निक. अच्छा, ये चूंकि वो टिप्स हैं कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड वी शेयर एंड वी, आई थिंक पीपल टेक ट्रेनिंग्स ऑन इट, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस. वो फिर वहां वर्कशॉप में जब हम ये इसको हैंडल करते हैं तो फिर हम मेडिटेशन करवाते हैं. ये भी मेडिटेशन, जापानी खास तौर पर, वो कहते हैं अच्छा जी खड़े हो जाइए, अपने बाजू को स्ट्रेच कर लीजिए, ऊपर कर लीजिए. वो तो बल्कि रिटेल स्टोर्स के अंदर उन्होंने ऐसे ट्रेनर्स हायर किए हुए होते हैं. बाय द वे, जापानी जो है वो सबसे मुश्किल है मुस्कुराने में, और रशियंस भी सबसे मुश्किल हैं. तो वो उनको ये जो फेशियल मसल्स हैं इनको कैसे ऊपर नीचे किया जाए कि ये स्ट्रेसफुल ना हो. तो गिव देम ट्रेनिंग. इसलिए कि स्माइलिंग फेस का मैनेजर फ्लोर पर, सेल्स पर्सन, कस्टमर रिलेशनिंग ऑफिसर फ्लोर पर will attract and give more performance, will attract more customers. And happiness adds more value into your life. And we need to learn how these management skills can add value to our life. And how can we bring life to our management skills? दोनों चीजें इंपॉर्टेंट. How these management skills can add value to our life, and how we can add value and life to these management skills which are required by me. All right, just to share with you, $500 billion annually, मैंने नॉर्थ अमेरिका का जिक्र किया था ना, $500 billion annually कॉस्ट है इस स्ट्रेस की. किस वजह से? लोग एब्सेंट हैं दफ्तर से. उसकी रीजन कुछ भी हो, काम तो ना हुआ ना, उसकी क्या कॉस्ट है? टर्नओवर है, छोड़ के चले जाते हैं लोग. ऑल ऑफ ए सडन वन वेरी फाइन मॉर्निंग वी गेट द रिजाइन. पीपल आर डिससैटिस्फाइड एट द जॉब. तो जब आप डिससैटिस्फाइड होंगे, आप मुझे बताइए, काम में दिल नहीं लगेगा. काम क्या करेंगे? यू लुक बिजी, डू नथिंग. एक्सीडेंट्स होते हैं इन द ऑफिस. हेल्थ सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स आ गए हैं. एंड देन आउटसाइड द ऑफिस, फिजिकल हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉइज इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. एंड दैट इज वन reason many companies, they have clubs and gyms even within the office building, or they give membership. Depend karta hai. I remember in the IT companies, look at the world known IT companies and see their headquarters. They are built to give a environment, a facility where they can go and get relaxed. It's very important. मैंने कहा था ना कि people leave organization because of the boss. Ineffective management, my dear students, ineffective management create employee stress. And when there is an employee stress, there will be ineffective management. See how it is connected together? Ineffective management creates stress. And when there is a stress on the employee, productivity will go down, profitability will go down, production planning will not be done, reports will not be done, sheet will not be balanced. Ineffective management. Let us share and learn this Kurt Lewin model, Levin's forces field model. According to this model, he says, always there will be stressors. There will be resistances to your work. There will be resistance to your value. There will be resistance to your attitude. There will be resistance to your style. Always will be there. मैंने कहा था ना, वाइफ एंड हस्बैंड, डिफरेंट स्टाइल्स, डिफरेंट पर्सनैलिटीज, डिफरेंट फूड हैबिट्स, डिफरेंट स्लीपिंग हैबिट्स, डिफरेंट कलर हैबिट्स. Am I right? That's a restraining factor. My dear students, that is a constraint. But please don't take it as a constraint. On the other hand, are the driving forces. And the current level where you are functioning
if these restraining forces will overcome, your functioning will go down. Either you have to balance it out. मैंने कहा था ना, learn how to live with someone who only eats rice. आप रोटी खाने वाले हैं, आप जाइए जरा साउथ एशिया में, ढूंढने से रोटी भी नहीं मिलेगी. एवरीबॉडी ईट्स राइस. नाश्ते में भी राइस, लंच में भी राइस, डिनर में भी राइस, और हाई टी पे भी राइस, या राइस की बनी हुई चीजें. व्हाट शुड आई डू? ट्रैवल इन ए कंट्री where you think food is not of your habit. In one country you go, मिर्चें ही नहीं है उसमें. In one country you go, बहुत सारी मिर्चें. Travel to Bangladesh. See what kind of fish and how many type of... So food, dress, culture creates a stress. Yes, I agree. But please, if this becomes a restraining factor, मतलब मैं मलेशिया में ट्रैवल करता हूं, आई गो सम टाइम फॉर ट्रेनिंग, फॉर ऑफरिंग कोर्सेज. अब उनकी वो जो करी है और उसकी स्पाइसेस को वो स्पाइसेस हमसे मुख्तलिफ हैं. बट थिंक ऑफ इट, यू आर गोइंग टू लिव हियर फॉर ए वीक और 2 weeks, नो प्रॉब्लम. उसके अलावा कुछ और खा लीजिए. व्हाई यू आर क्रिएटिंग स्ट्रेस ऑन यू कि आपको इसके अलावा कुछ और नहीं मिल रहा? Some of us may be allergic to Chinese food. Some of us may be allergic to some other food items. But fine, that's good enough. Let it not become a restraining factor in your life. It will affect the health. So it could be a work-related restraining factor, or it could be a life-related restraining factor. It could be a social. It could be psychological. But please realize this and do not let your level of functioning go down. How can you do that? Develop those driving forces. Compete कीजिए उन restraining forces को to bring it down. Think of the future. Think of that spring season which will come. ऐसा तो नहीं होगा ना कि spring आएगी नहीं, आएगी. माइंड में जरा बैठा लीजिए, ओके, इट विल कम एंड इट विल गिव यू कंफर्ट. 3 stages of stress when you feel, think of it. At what stage you are? Number 1, it's an alarming stage. When you feel anxiety, when you are fearful, when you are sorrowful, when you think you're losing. It's alarm. Be careful. घंटी बज गई है. अब आपको घंटी बजी है एंजाइटी की, फियर की. इस फियर को, अब फियर इज ए रिस्ट्रेनिंग फैक्टर. आपको इस फियर को कैसे काउंटर करना है? ड्राइविंग फोर्स वर्सेस द रिस्ट्रेनिंग फोर्स. यू हैव टू कम आउट ऑफ द फियर. प्लीज डू नॉट बिकम स्लेव ऑफ योरसेल्फ. मैंने कुछ लोगों को देखा है, बाज़ औक़ात दे आर fearful of their own shadows. Be courageous. Be confident. Self-awareness पढ़ कर आए हैं ना. Take pride in the work which you do. Take pride in the contribution which you are making in the office. Take pride in the value which you are giving to your children or to your brothers. Do not wait that they will be thankful to you. मिल जाए अच्छी बात है, but take pride. Take good feeling that you are a helping hand. लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अलार्म बज गया है, प्लीज टेक नोट ऑफ इट. दूसरी स्टेज ये है कि यू डेवलप रेजिस्टेंस. यू अटेम्प्ट टू कंट्रोल स्ट्रेस यूजिंग डिफेंसिव मैकेनिज्म. फ्लाइट, भाग गए, गायब हो गए, टाइम पे हाजिर ही नहीं हुए, असाइनमेंट सबमिट ही नहीं की. समझा, वक्त गुजर ही जाए, वक्त तो गुजर जाएगा. यू डेवलप रेजिस्टेंस. अच्छा, जब रेजिस्टेंस आपने डेवलप की तो फिर तो रिस्ट्रेनिंग जो फोर्सेस थी और मल्टीप्लाई हो गई. तो ऑलरेडी रिस्ट्रेनिंग फोर्स इज ए रेजिस्टेंस फोर्स. अभी तक तो वो कॉज ऑफ स्ट्रेस, नाउ यू हैव बिकम पार्ट ऑफ इट. वो जो बॉस, वो जो वर्क आवर, वो जो वर्क एनवायरनमेंट स्ट्रेसफुल था, अब आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने इस बॉस का दिया हुआ कोई कहना मानना ही नहीं है. रेजिस्टेंस.
well, that is even more stressful. और फिर तीसरी स्टेज उसकी ये है, you feel exhausted. All the energy is gone. You just lie down and locus of control में पढ़ा था ना, external locus of control. और बिल्कुल ऐसा locus of control कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता जी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है. आपके हाथ में क्यों नहीं है? Why do you feel so much under stress that you have to go through these kind of conditions? All right, then, let's try to convince ourselves that yes, stress management is important. And it is important to take care of our life, to take care of our work, to take care of our psychology, to take care of our physical health, emotional health, let me add, spiritual health. इसलिए कि जब आप फीलिंग ही ठीक नहीं होंगी अपने बारे में, तो आप कैसे स्पिरिचुअल कंसंट्रेशन लेकर आएंगे? प्लीज टेक अ लुक क्लोजली ऑन दिस मॉडल. यू एक्सपीरियंस स्ट्रेस, फाइन. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेसर्स फ्रॉम वर्क एंड लाइफ. 2 कैटेगरीज हमने बनाई थी, वर्क रिलेटेड, लाइफ रिलेटेड. नाउ व्हाट वी आर लर्निंग हियर इज दैट दीज स्ट्रेसर्स we divide them into 4 categories: anticipatory, encounter, time and situational. अभी हम इसकी डिटेल देखेंगे, लेकिन इनको बैलेंस आउट करने के लिए, मॉडरेट करने के लिए, जो मॉडरेटर का रोल प्ले कर सकता है वो है आपकी रेजिलियंस. फिर दोबारा आ गया स्टेमिना. हैंग इन देयर. दैट रेजिलियंस इज 3 टाइप्स: फिजिकल रेजिलियंस, psychological resilience. मैंने कहा था ना, psychologically when he saw Brutus, he fell down. And third is social resilience. तो resilience का रोल इस मॉडल में मॉडरेटर का है, to bring it down. But of course, reaction क्या होगा, effect क्या होगा? You will be physiologically stressful or you will be psychologically stressful. Psychologically stressful ऐसा कि रात को डरावने ख्वाब आए, रात को सोते हुए भी वो चेहरा नजर आए जो फियरफुल बनाता है, ये रात को सोते हुए भी वो काम नजर आए जो कंप्लीट नहीं हुआ. साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल. और फिर इसको मैनेज करने के लिए जो स्ट्रेटजीज हैं वो भी देखिए 3 यहां पर हम डेवलप कर रहे हैं. इसकी हम डिटेल भी देखते हैं. इनएक्टिव स्ट्रेटजीज, प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज एंड रिएक्टिव स्ट्रेटजीज. अच्छा, नाम बता रहा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लफ्ज यूज किया था ना, प्रोएक्टिवली टेक अ प्रिवेंटिव एक्शन. रिएक्टिव स्ट्रेटजी का पर्पस ये होगा कि वी विल लर्न हाउ टू कोप विद द स्ट्रेसर टेम्परेरीली. हाउ विल रिएक्ट? किसी ने वर्बली आपको ह्यूमिलिएट किया, दैट्स नॉट गुड. चाहे वो मेल है, फीमेल है, बॉस है, कुलीग है. रिएक्टिव स्ट्रेटजी होगी कि यू हैव टू लर्न टेम्परेरीली व्हाट शुड आई डू. Should I change my position? Should I leave the scene? Should I go and complain at the proper place? Or should I take the discipline in my hand? वो तो destructive strategy होगी. Reactive strategy ये भी हो सकती है, all right, I will wait for the proper time. And again, we learn from the females in the workplace. They manage quite good to present professional posture, even when sometime a male dominant environment or a masculine dominant environment. But इन दोनों में फर्क है. Harassment is there, and how immediate response should send a message, and you will use this strategy to keep them at a distance. That's how you have to do it, otherwise it will create stress. Proactive strategy होगी कि you will develop those strategies which will give you resilience, capability. We'll talk about that. And of course, सबसे बेहतर ये है an active strategy. इसका purpose ये होगा कि you want to eliminate that stressor completely from your life, from your work. Naturally, inactive strategy का फायदा ये होगा कि it will be a permanent elimination of stress.
प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी विल बी लॉन्ग टर्म इफेक्ट, और रिएक्टिव का ये होगा कि शॉर्ट टर्म, उस दिन के लिए, उस हफ्ते के लिए, उस घंटे के लिए यू केम आउट ऑफ द स्ट्रेस. Naturally, you have to learn this and you have to practice it, and it will take some time to manage in the work environment, in the life environment, that how are you going to take these 4 types of stressors in work and life: anticipatory, encounter, time related and situational. और सबसे important मेरे नजदीक ये सोचिए कि how can you develop this resiliency, physical, physiological, social, because at the end of the day जो इफेक्ट होगा, वी वांट टू अवॉइड दैट. जो रिएक्शन होगा वो चाहे साइकोलॉजिकल हो या फिजियोलॉजिकल हो. देखिए ना, फिजियोलॉजिकल एक्शन डेली ओवरलोडेड ऑफ द वर्क, यू डोंट हैव इवन टाइम टू ईट. जैसे हमने कहा था ना, टाइप ए पर्सनैलिटी, वर्किंग एंड ईटिंग व्हाइल वॉकिंग. वो फूड तो चली गई अंदर, उसने एनर्जी प्रोवाइड नहीं की, वो एब्जॉर्ब भी नहीं हुई, वो एसिमिलेट ही नहीं. वो आपने ईटिंग हैबिट्स पे भी बात आएगी. वो खाना तो आपने बहुत खा लिया, बट द प्रोटीन विच इज रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी पर डे इज नॉट मोर देन 200 ग्राम. तो आपने जो 2 किलो चरगा या मछली खा ली, क्या फायदा उसका? इट विल ऑल बी वेस्टेड in the form of nitrogen and ammonia and urea. हमने देखिए उन केमिकल्स का नाम ले दिया है, which are excreted from the body physiologically. So in this perspective then we would like to look at this, that how do we experience and how do we manage. और फिर इसी किताब में से we will learn how to manage the time and how to manage physiologically and psychologically, and what are the activities which we have to add in our life which will add value to our life and to our management skill, and which will be the activities which we have to just think of it, getting rid of it. देखिए ना, साइकोलॉजिकली तो वो ख्याल ही है ना, वो सोच है, वो तस्वीर है जो आती है और आकर डिस्टर्ब करती है. उस तस्वीर को फाइल से निकाल दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए, दिल से निकाल दीजिए, स्ट्रेस निकल जाएगा. I want to see you with no stress. Would you please? Think about it. Very important. And we'll try to look at some of these strategies and finish it up in the next session. Thank you. Until then, Khuda Hafiz.